Human Development Index. Okay. What is Human Development Index? You please write Human Development Index. Okay. I told you it was developed by a team of economists led by Professor Mehboobu'l Haq. Clear that? So you can write it was developed by a team of experts, of UNDP. It was developed by a team of experts of United Nations Development Program. Okay, a team of experts of UNDP led by Professor Mehboob ul Haq. Professor Mehboob ul Haq. Professor Mehboob ul Haq, a late Pakistani economist. A late Pakistani economist, Professor Mehboob ul Haq. It was developed by Professor Mehboob ul Haq, a late Pakistani economist. Clear? Indian Nobel laureate. Nobel laureate means one who has got the Nobel Prize. Indian Nobel laureate, Professor A.K. Sen was also part of this team. Indian Nobel laureate, Professor Amartya Sen or A.K. Sen was also part of this team. Okay, who is A.K. Sen? Amartya Kumar Sen. Okay, then, now why is he famous? Amartya Kumar Sen, he is a famous Indian economist who got Nobel Prize in Economics in 1998. 1998, he received Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize for what? For his work in developmental economics or welfare economics. For his work in developmental economics and welfare economics. He got Nobel Prize for his work in developmental economics and welfare economics. Okay, mainly it was with dealing with poverty. Mainly his work was dealing with poverty. Clear? So just a brief idea about this Amartya Kumar Sen. He was also a part of this team of economists who developed Human Development Index. Okay. And Human Development Index is published in one report that is called Human Development Report. Okay, you can write since 1990. HDI, Human Development Index, is published. Human Development Index is published in the HDR. That is Human Development Report of UNDP. What is UNDP? I told you the other day. It is an agency of United Nations which monitors the developmental activities across the globe. Human Development Report HDR. Human Development Report HDR. Clear? Human Development Report HDR. Clear? Now, what is this Human Development Index and how is it constructed? Human Development Index is based on three dimensions rather. Human Development Index is based on three dimensions. Human Development Index is based on three dimensions. Okay, now I will construct the HDI, Human Development Index. It has basically three dimensions. You'll construct a dimensions here. Then you will write here indicator. हर डायमेंशन का एक इंडिकेटर होता है. जैसे हेल्थ डायमेंशन है, उसके इंडिकेटर्स क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी एटसेट्रा. ठीक है, डायमेंशन, देन इंडिकेटर, देन थ्रेशोल्ड, और लिमिट्स. ओके, वैल्यू.
threshold limits are value or scores. Value, minimum value and maximum value. Minimum value and maximum value. Okay, then you will construct the dimension index. Dimension index. Okay, dimension index you will construct here. Okay, value, minimum and maximum. Minimum on this side, minimum value on this side and maximum value on this side. Okay, so this is value minimum and this is value maximum. Okay, then you will write dimension here and you will also write indicator here. This is the way Human Development Index is constructed. It has three dimensions. One is health, one is knowledge, and one is standard of living. Okay, one dimension is health. One is, second dimension is knowledge. And third dimension is standard of living. This was a question asked by Civil Services exam, that which of the following is not a dimension in Human Development Index. So Human Development Index is based on how many dimensions? Three dimensions. One is health, knowledge, and standard of living. Health, knowledge, and standard of living. Now, what are the indicators of health? How is health indicated? How is health indicated? Health is indicated by life expectancy at birth. Life expectancy at birth. When an individual is born, how much do you expect him to live? To live on this earth, to live a healthy life. Okay. If life expectancy is more, then you can say that yes, this country has good health facilities. Okay, life expectancy is a very broad indicator of health. Okay, it includes all. अगर immunization सही हुआ, vaccination सही हुआ, तभी तो chances है कि ज्यादा life जियोगे. ठीक है? So what is the minimum value? Minimum value in a country you can expect कि minimum जो हो सकती है life expectancy वो कितनी हो सकती है? 20 years. हालांकि इतनी है नहीं किसी कंट्री की. ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ जिनमें 30 इयर्स है, 32 इयर्स है, बट 20 इयर्स किसी की भी नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने रखी है कि 20 से हो सकती है मिनिमम वैल्यू कहां तक? 20 से इट कैन बी मैक्सिमम हाउ मच? 85 इयर्स. 85 इयर्स मैक्सिमम इट कैन बी 85 इयर्स. ओके, एंड 20 years to 85 years can be the life expectancy. 20 years to 85 years can be the life expectancy. Clear? But what about the dimension index? क्या कहेंगे इस वाले डायमेंशन इंडेक्स को? हेल्थ के इंडेक्स को क्या कहेंगे? हेल्थ इंडेक्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. यू विल कॉल इट द डायमेंशन इंडेक्स. मींस इस डायमेंशन के इंडेक्स को क्या बोलोगे आप? इट विल बी कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. क्या बोलोगे आप इसे? इट विल बी कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. Life expectancy index. It will be called as life expectancy index. It will be called life expectancy index. Clear? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. अब इसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा इंडेक्स क्या है? दैट इज नॉलेज. तो नॉलेज को कैसे आप मेजर कर सकते हो? हाउ कैन यू से व्हाट कैन बी द इंडिकेटर्स ऑफ नॉलेज? अगर आप बोलोगे कि सिर्फ स्कूलिंग देखेंगे, हम क्या देखेंगे? स्कूलिंग देखेंगे, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, उससे भी तो नहीं पता चल सकता है. पहले आप देखो कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं. ठीक है, और ऑलरेडी जो एज है, स्कूलिंग तो सिर्फ आप स्कूल गोइंग बच्चों का ही पता लगा सकते हो ना. जो जा चुके हैं स्कूल, जो बूढ़े हो चुके, बड़े हो चुके, उनका कैसे पता चलेगा आपको नॉलेज है कि नहीं है? आप उनका देखो कि वो एवरेज ईयर्स कितने ईयर्स स्कूल गए हैं. ठीक है, तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग and expected years of schooling. Mean years for people above the age of 25 years. Expected years for people below the age of 25 years. कि कितना expectation है, कितनी देर ये बंदा स्कूल जाएगा. ठीक है, so it has two indicators. It has how many indicators? Two indicators. One indicator is called mean years of schooling and second one is called expected years of schooling. One is called as mean years
of schooling. Another one is called expected years of schooling. Now किसको ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कूल जाना, बड़े को या छोटे को? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. और ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द पीपल बिलो द एज ऑफ 25 years. दिस इज फॉर बिलो 25 years age group, and this is for above 25 years age group. Above 25 years age group. Below 25 years age group and above 25 years age group. Clear? अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट यू विल सी, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो अबव 25 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम तो ऑब्वियसली यार, या तो वो कभी स्कूल गया ही नहीं होगा, ठीक है, या वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक स्कूल गया होगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली जनरेशन है उसमें जो एजुकेशनल पॉलिसी ऑपरेशनल थी उसमें नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वो था ही नहीं, फर्स्ट से सीधा स्कूल जाते थे. यू गेट द पॉइंट? सो इसलिए अबव 25 इयर्स वाले एज ग्रुप के लिए 15 इयर्स ही रखे, ठीक है. एक्सपेक्टेड कितना एक्सपेक्ट करते हो? एज पर ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया हम तो एक्सपेक्ट करते 25 साल 30 साल स्कूल जाए बंदा, यूनिवर्सिटी वो सब तो स्कूलिंग के ही अंदर आएगा, सीखने लर्निंग है ना, ठीक है. लेकिन ओवरऑल ये इंडिया का है नहीं, तो ये ग्लोबल लेवल का है, ठीक है. अब ग्लोबल लेवल पे मिनिमम कितना जा सकता है स्कूल एक बच्चा? या तो कभी जाएगा ही नहीं, और ज्यादा से ज्यादा ही प्रोलॉन्ग स्टडी कर लेगा तो 18 इयर्स ऑफ स्कूलिंग. 18 इयर्स ऑफ स्कूलिंग. क्लियर? इस पॉइंट की वजह से लोगों ने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है? बायस्डनेस है. अरे यार, इंडिया का बच्चा 18 साल में तो अभी मम्मा मम्मा ही चला रहा होता है, ठीक है. मतलब 18 साल की एज नहीं है, या तो स्कूल कभी जाएगा नहीं या ज्यादा से ज्यादा 18 साल जाएगा. इसका मतलब अगर वो 4 साल से स्कूल जाना शुरू करता है तो 18 साल उसमें ऐड कर लो, 22 ईयर्स ही. लेकिन हमारे यहाँ 22 ईयर्स वाले अभी बच्चे ही होते हैं, ठीक है. हाँ, ब्रिटिशर्स ने जब एज ऑफ सिविल सर्विसेज को कम किया, तो एंट्री ऑफ एज ऑफ सिविल सर्विसेज को 21 से लेकर कहां तक लाया? 18 इयर्स तक, ठीक है. इंडियंस ने सबसे ज्यादा शोर इसीलिए मचाया कि हमारे तो बच्चे ही तब तक रेडी नहीं होते, लेकिन उनके बच्चे 3 साल के अंदर अपने पेरेंट्स से अलग सोना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है. हाँ, मैं एक वो देख रहा था, शो देख रहा था, उसमें एक मदर काउंसलिंग सेंटर पे फोन कर रही थी. उससे पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. उन्होंने बोला मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ आजकल, एंजाइटीज हैं. क्यों? क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की हो गई और वो अभी तक भी अपने रूम में नहीं सोती, अलग रूम में नहीं सोती. यू गेट द पॉइंट? सो दिस इज हाउ देयर सेटअप इज एंड आवर सेटअप. हमारे में 6 8 9 साल तक तो इंसान आराम से अभी मम्मा पापा के पास ही सो रहा होता है, ठीक है. हाँ, तो बेसिकली एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो स्कूलिंग? 0 से 18 इयर्स तक. और मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो ओल्ड एज जा चुके हैं उनका, अब जितना ज्यादा स्कोर होगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा टाइम क्या है उन्होंने स्कूलिंग किया है, इसका मतलब उतना बेटर वहां पे एजुकेशन स्टेटस होगा और नॉलेज का स्टेटस होगा. यू गेट द पॉइंट? और इसका जो इंडेक्स है उसको क्या बोलेंगे? नॉलेज इंडेक्स या एजुकेशन इंडेक्स? सो इसके जो इंडेक्स को है उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन इंडेक्स. The index of knowledge is called education index. Is called education index. Clear? उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे आप पता लगा सकते हो? यू कैन टेक इट फ्रॉम GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI पर कैपिटा. GNI पर कैपिटा. GNI का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू GNI पर कैपिटा. डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू GNI पर कैपिटा. ओके. और इसको पर कैपिटा इनकम भी दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं. GNI का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम. ग्रॉस नेशनल इनकम per capita. Per capita means per individual. Per capita. Clear? It is also called as
जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हर कंट्री के अंदर जीएनआई पर कैपिटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? या तो होगी डॉलर 100 से लेकर ये कितने तक हो सकती है? इट कैन बी $7,500, 7 सॉरी $75,000 तक हो सकती है, $75,000 तक हो सकती है। डॉलर कितनी हो सकती है? 75,000 तक, ठीक है। हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 75,000। कुछ कंट्रीज की ना $1,34,000 भी है, $1,34,000 भी है। तो इसका मतलब उनमें बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट है? नहीं, उनमें बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ है। वो इसी पैरामीटर पे तो अच्छा है, इस पे और इस पे क्या पता वो पुअर हो, ठीक है। लेकिन जीएनआई पर कैपिटा का एवरेज रखा है कि एवरेज जो है वो डॉलर मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है। कुछ कंट्रीज की बहुत ज्यादा भी है इससे। अच्छा, जीएनआई पर कैपिटा इनकम से जो हम इंडेक्स बनाएंगे वो लिविंग इंडेक्स होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा या जीएनआई इंडेक्स होगा? तो इसको क्या बोलते हैं आप? जीएनआई इंडेक्स। इस तरह से आप ये तीन इंडाइसिस क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। दीज आर सब इंडाइसिस। जब इन तीनों का आप लेंगे क्या? जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन of these indices will geometric mean of these indices will give the value of HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? जब इन तीनों इंडाइसिस का क्या निकालोगे? जियोमेट्रिक मीन। क्या निकालोगे? जियोमेट्रिक मीन। जब इन तीनों इंडाइसिस का क्या निकालोगे? जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। क्लियर? अब हमने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बहुत अच्छा इंडेक्स क्यों माना? हमने इसे बहुत ज्यादा सर पे क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि जहां तक ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात कर रहे हो, हेल्थ की बात कर रहे हो, ये हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये? इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? It is a set of goals which are fixed by UNDP, which are to be achieved from 2015 to 2030। अभी सिर्फ इतना समझो, बाद में डिटेल इसका पूरा एक क्वेश्चन है मेंस का, वो लिखवाऊंगा मैं आपको कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने कब सेटअप किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमारे पास थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वो कब से कब तक थे? वो थे 2000 से लेकर 2015 तक। 2015 वाई मिलीनियम? क्योंकि हम 2000 में एंटर हुए थे। 20th सेंचुरी का ओवर हुआ था, 21st सेंचुरी का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। अब 2000 के जितने भी ये साल चलेंगे इनको मिलीनियम्स के साल बोलेंगे। ईयर ऑफ मिलीनियम इज बेसिकली क्लब ऑफ 1000 ईयर्स। यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो 1999, ठीक है। जिस दिन ये खत्म हुआ 1999 और शुरू हो गया 2000, तो एक नया मिलेनियम शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? ठीक है। ऋतिक रोशन ने गाना गाया कि नहीं गाया? देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, ठीक है। हाँ, है या आपको कुछ आइडिया है? इस तरह का कोई गाना आया था? है? आमिर खान का था? चलो ठीक है, मेरा माय बैड, आई एम नॉट गुड एट बॉलीवुड इंफॉर्मेशन, है ना, ठीक है। लेकिन गाना आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो नया मिलेनियम शुरू हुआ था। मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स, ओके। तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे कि हम नए मिलीनियम में एंटर हो रहे हैं, हम एक सेट ऑफ गोल्स रखेंगे, ठीक है। हमने कितने गोल्स बनाए? 8 गोल्स बनाए, ठीक है। हम इनको अचीव करेंगे 2015 तक। हम देखेंगे बाद में हमने वो अचीव किए या नहीं किए। 2015 में जब हमने उनका रिवीजन किया तो हमने देखा उसमें बहुत ज्यादा ना सोशल गोल्स हैं, इकोनॉमिक गोल्स नहीं है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। हमने बोला यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमने फिक्स किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में। 2030 तक हमें वो अचीव करने हैं। 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, ठीक है। हाँ, यूपीएससी ने एक बार ये भी सवाल पूछा उसी साल में जिस साल हमने फिक्स किया, 2016 में ही सवाल पूछा, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? उसमें कितने गोल्स है मैंने अभी आपको बता दिया, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स। तो वो लिखवाऊंगा मैं आपको अलग से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? इट इज अबाउट इंप्रूविंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूविंग द हेल्थ एजुकेशन कंडीशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3
mean years of schooling. Sustainable Development Goal 4.3 means fourth goal का third target. Okay, Sustainable Development Goal 4.3, goal number 4, target number 3 in that. Clear? And this is Sustainable Development Goal. This is Sustainable Development Goal number 4.4. Sustainable Development Goal number 4.4. तो क्या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इन लाइन है? हाँ, काफी हद तक, काफी सारे, लेकिन अब 2 3 4 ही तो गोल्स ये देख रहा है, बाकी तो 17 गोल्स है वहां पे, है ना? हाँ, और जहां तक बात की जाए इसकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ाना है। ये कौन बोलता है हमें? ये हमें बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8.5। ठीक है, ये याद तो नहीं रखने हैं जरूरी नंबर्स कि कौन सा गोल नंबर है ये, लेकिन इतना याद रखना कि चारों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे एक एक गोल है, हमको इनको अचीव करना है, हमको इनको अचीव करना है। ठीक है, सो दिस इज जीएनआई इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। और जब हम इसका जियोमेट्रिक मीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? जियोमेट्रिक मीन ले लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। पर आपको पहले ये समझना है कि ये इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखो, मैं आपको बताता हूं 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लास्ट पब्लिश हुआ, फिर 2019 का लास्ट पब्लिश हुआ, 20 का पब्लिश ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा कोविड के टाइम पे ये ईयर था। फिर 21-22 का एक साथ पब्लिश हुआ। ठीक है, हाँ, अब आप लिखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। व्हाट वाज इट्स टाइटल? टाइटल भी पूछा जाता है कभी, हाँ, ह्यूमन डेवलप HDR 2021-2022, 2023 वाला अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, लेकिन 2021-2022 उसका टाइटल क्या था? अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स, हाँ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। हाँ, इट वाज uncertain times, unsettled lives, unsettled lives. Okay, uncertain times, unsettled lives, huh? Unsettled lives, shaping our future, shaping our future in a transforming world, shaping our future in a transforming world. ये हाँ, shaping our future in a transforming world, shaping our future in a transforming world. अच्छा, ये जो 21-22 की रिपोर्ट है, ये 2 पार्ट्स में है। ठीक है, दिस इज द टाइटल फॉर 21, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर वाज अंडर द कोविड पेंडेमिक। ठीक है, और टाइटल फॉर 2022 रिपोर्ट, 2022 रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट का क्या टाइटल था? दैट यू मस्ट आल्सो नो। द रिपोर्ट ऑफ 2022 वाज बेसिकली न्यू थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी इन एंथ्रोपोसीन, एंड दिस वाज अ स्पेशल रिपोर्ट, न्यू थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी इन द एंथ्रोपोसीन, न्यू थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी, human security in the Anthropocene. अच्छा, व्हाट इज एंथ्रोपोसीन? जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, आप देखते हैं पूरा अर्थ जो है वो डिवाइडेड है, किसमें? कई सारी एजेस में। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो वो कहां से स्टार्ट होता है? मियोसीन से, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन। ओके, अब होलोसीन ये अर्थ की एजेस के नाम है। ठीक है,
ये ईयर्स, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स है इन बिटवीन। एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब ये जब आप देखोगे, जब लिखा है यहाँ पे एंथ्रोपोसीन, सीन का मतलब है ये वो एज की बात, एज एक टाइम पीरियड, ये उस पीरियड की बात कर रहा है जब कौन आया है, ह्यूमन, एंथ्रोपोसीन। तो ह्यूमन के एज की बात कर रहा है, और ये क्या देख रहा है कि ह्यूमन सिक्योरिटी को काफी सारी नई नई थ्रेट्स इमर्ज हुई है, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल रिपोर्ट ऑफ 2020 व्हिच इज अ स्पेशल रिपोर्ट। और ये किस चीज के बारे में बात किया इस रिपोर्ट ने? इस रिपोर्ट ने बात किया जो इनसिक्योरिटीज है, ठीक है, वॉर्स है, पेंडेमिक रिलेटेड इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज है, ठीक है। तो इसने इस चीज की बात की कि इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये उसका उसका टाइटल है अनसर्टेन टाइम्स अनसर्टेन लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। क्लियर? अब हमको ये देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है पास्ट में और क्या परफॉर्मेंस है हमारी आज, ठीक है। तो आपको उसमें एनालिसिस आएगा, और कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर यू, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज भी मैं यहीं पे लिख दूंगा ताकि आपको समझ आए, आप देख पाओ कि हमारा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। यू गेट द पॉइंट? ओके, नाउ राइट डाउन, वी विल सी नाउ इंडियाज परफॉर्मेंस। ओके, इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं पहले, सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूंगा, ठीक है। मैं पहले किसकी बात करूंगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूंगा, और मैं हमेशा पिछली रिपोर्ट से इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। मैं 2019 की भी बात करूंगा और 2021 की भी बात करूंगा, ठीक है। हाँ, इंडिया इन 2019, what was the life expectancy? It was 69.4 years. It was 69.4 years, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये इज इट अ गुड नंबर और बैड नंबर और नॉर्मल एवरेज? ये अच्छा है, ये नंबर जो है इंडिया का, ये गुड, बैड और एवरेज और नॉर्मल? हाँ, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? ग्लोबल एवरेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इंडिया का ही 2021-22 का सिनेरियो देखते हैं। 2021-22 में हमारा क्या है? 2021-22 में इट डिक्लाइन फ्रॉम 69 टू 67.2 ईयर्स। तो आज की डेट में क्या है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मतलब एक इंडिविजुअल इंडिया में इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल लिव फॉर 67 पॉइंट हाउ मेनी ईयर्स? 67.2 years. An individual in India is expected to live for 67.2 years on an average. You get the point? अब कहां पे रुके हम? हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम 69.4 से कहां तक आ गए? 62 years. हमारे लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? पूरे वर्ल्ड के लिए बैड न्यूज है। तो इसलिए एक्चुअली हमें ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। कोविड के टाइम पे ये क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड का क्या हुआ, ये डिक्लाइन होगा। जैसे पूरे, यहाँ पे मैं वर्ल्ड एवरेज भी लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं वर्ल्ड एवरेज लिख देता हूँ, है ना, वर्ल्ड एवरेज। अब वर्ल्ड एवरेज अगर कोविड से पहले देखोगे आप, इट वाज 72.8, और अब क्या हो गया ये 71.4। वर्ल्ड एवरेज 72.8 and it is now 71.4. This was 2019 and this is 2021-22. Okay, are you? This was 2020. ठीक है, प्लीज। नाउ एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर क्या हुआ इस बार। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ड्रॉप्ड दिस ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी ने पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, नीचे लिखा होगा द लाइफ एक्सपेक्टेंसी अक्रॉस द ग्लोब हैज फॉलन ड्यूरिंग दीज कोविड ईयर्स। ओके, डेफिनेटली वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट शोज। यू गेट द पॉइंट? सो सवाल जो आते हैं, अगर एनालिसिस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल आते हैं, वो इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं यार पता नहीं कहां से सवाल आते हैं, ठीक है, हमने चीजों को एनालाइज नहीं किया होता, ठीक है। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर बात करें हम, तो ग्लोबल एवरेज अगर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें, इंडिया में
मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में इस वाली रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द ओनली प्लेस वेयर वी हैव इंप्रूव्ड दिस ईयर। बाकी सब जगह हमारा डिटीरियोरेशन है, ठीक है। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? अर्लियर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर इंडिया वाज 6.5 years. It was in 2019 report. Okay, or this year report, what is it? In this year's report, it is 6.7 years. 6.7 years. It was in 2021-22 report. अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या 2019, 20, 21, 22 में ज्यादा लोग स्कूल चले गए हमारे? तो ये कैसे इंप्रूव हो गया? मैंने बताया मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 0 से 15 साल तक तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम। हमारी कंट्री में हर एक बंदा मिनिमम इतने साल तक एवरेज, ऑन एन एवरेज स्कूल गया है, ठीक है। और पहले ये 2019 की बात है, ये 2020 की बात है, तो 6.7 साल अब आ रहा है। तो मतलब क्या ज्यादा स्कूल गए हमारे लोग? ये डेटा किन का है? अबाउट 25 ईयर्स का है, ठीक है। पिछले साल तुम में से कई सारे लोग इस कैटेगरी में नहीं थे, 2 साल बीच में गुजरे, तुम में से कई सारे लोग उस कैटेगरी में आ गए। अब नेचुरली तुम्हारा जो है एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बहुत ज्यादा है, अभी भी चल ही रहा है। इनफैक्ट कौन कौन लोग हैं जो 2019 से लेकर 2022 तक 25 साल के बैंड में आए हैं, 25 ईयर वाले बैंड में? आप में से है कोई जो 25 ईयर में है ऑलरेडी? आप तो छोटे हो अभी, है ना। लेकिन आपसे एक दो क्लास सीनियर जो थे वो पिछले साल 25 ईयर बैंड में नहीं थे, इस साल वो 25 ईयर बैंड में वो आ गए। अब जब उनका कैलकुलेशन होगा, उनके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो ज्यादा है, वो जब एवरेज में जुड़ेगा तो थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा ही। तो इसका मतलब स्कूल ज्यादा नहीं गए, ज्यादा नंबर ऑफ लोग इसमें ऐड हुए। किसमें? 25 ईयर्स प्लस वाले एज ग्रुप में, ठीक है। हाँ, और उधर से कई सारे जो है दूसरे एंड से सब्ट्रैक्ट भी हुए, 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, जो ट्रांसमाइग्रेट हो गए दूसरे वर्ल्ड में, ठीक है। हाँ, नाउ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सिर्फ हमारा यहीं पे इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ एज बढ़ गई, दूसरे नंबर पे एवरेज या फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्कूल जाना था, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। अब इस बार आप क्या कर रहे हो? बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्यादा स्कूल जाना है या कम स्कूल जाना? कम यार, कोविड, लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो बेसिकली 2019 में हमारा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना था? In 2019, expected years of schooling in India was 12.3 years. Was 12.3 years. Was 12.3 years. Okay. और इस साल में कितना है? It is 11.9 years. It is 11.9 years. हर चीज के साथ ना एक एरो लगा लेना। इसके साथ क्या एरो लगाओगे? अपवर्ड। मतलब ये चीज हमारी क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। इस चीज के साथ एरो लगाओगे डाउनवर्ड, मतलब ये चीज हमारी डिटीरियोरेट हो गई। इस चीज के साथ एरो लगाओगे डाउनवर्ड, मतलब ये चीज भी हमारी डिटीरियोरेट हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जीएनआई पर कैपिटा 2019 में कितना था? जीएनआई पर कैपिटा इट वाज डॉलर 6,681, डॉलर 6,681, इट वाज डॉलर 6,681। और इस बार कितना है? इट वाज 2021, 22, इट वाज डॉलर 6,590, 6,590, 6,590। मतलब ऑन एन एवरेज every individual in India was earning this much. अच्छा, ये इतना था पहले, अब इतना है, तो ये हमारा इंप्रूव हुआ है, डिटीरियोरेट हुआ है? ये भी डिटीरियोरेट हुआ है, ठीक है। इसमें अब ये अच्छा है या खराब है, आपको ग्लोबल एवरेज से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में ग्लोबल एवरेज कितना है? ये वर्ल्ड एवरेज यहाँ पे सारी है, ठीक है। दूसरी वर्ल्ड एवरेज है यहाँ पे, जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वर्ल्ड एवरेज लेवल पर, इट इज 8.6 ईयर्स। इट इज 8.6 ईयर्स। तो हम ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है या कम है? हम ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज, ग्लोबल एवरेज हियर इन दिस केस? इट इज 12.8 ईयर्स, 12.8 ईयर्स। और हम कहां पे हैं? हम कहां पे हैं?
11.9। हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं है इस पे, लेकिन अभी भी नीचे तो है, ठीक है। 12.8 years। अच्छा, व्हाट इज द ग्लोबल एवरेज ऑफ जीएनआई पर कैपिटा? इट इज $16,752। ओके, तो हम कहां पे हैं? हाफ भी नहीं है, हाफ भी नहीं है। जो हमारी जीएनआई पर कैपिटा है वो ग्लोबल एवरेज के हाफ पे भी नहीं है। तो हमारा डेवलपमेंटल सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और ओवरऑल जहन में क्या बोल सकता है आपका? व्हाट डज योर माइंड से? रैंक इंप्रूव हुई होगी 2020 के कंपैरिजन में या डिटीरियोरेट हुई है? रैंक डिटीरियोरेट हुई है, ठीक है। 130 थी पहले, 132 हो गई है, ठीक है। लेकिन रैंक को ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस बार ना नंबर ऑफ कंट्रीज भी थोड़ा इंक्रीज हुए, 3 कंट्रीज एडिशनल उन्होंने इस बार क्या किए हैं, उनका रेटिंग किया है। तो रैंक इस साल ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ज्यादा रिलेवेंट नंबर्स हैं, और नंबर्स में ऑलमोस्ट हर जगह डिक्लाइन हुआ। अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज शोन इंप्रूवमेंट during 2011 and 12, you know only, sorry, 2021-22, you know only mean years of schooling has shown improvement. वो भी not because of our efforts, but because number of people in the age band of 25 years increased. So many people got into the 25 plus age group and they have a large amount of schooling, huge numbers of schooling. ये वाली चीज जो है ना, अभी आपको बता देता हूँ। एनालिसिस कोई चीज होती है ना, ये वाली चीज हमारी अब हर साल बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि आगे आगे जो जो जनरेशन आ रहे हैं ना 25 ईयर्स प्लस, उनके नंबर ऑफ स्कूलिंग बहुत, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बहुत लंबा है, ठीक है। क्योंकि मतलब 25 ईयर्स में भी वो अभी स्कूल में ही है, ठीक है। और उन्होंने शुरू किया होगा 12 साल से, सॉरी आई मीन 3 साल से, तो 22 साल उनकी नंबर ऑफ स्कूलिंग ऑन एन एवरेज। तो ये चीज इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। हाँ, ये चीज का तो मुझे पता है, ये चीज हर साल इंक्रीज होगी हमारी। क्लियर? अब ये चीज मैं कैसे बोल पा रहा हूँ इंक्रीज हो रही, क्योंकि मुझे समझ आ रही है ये चीज का फर्क किस चीज से पड़ रहा है। तो ये चीज मुझे एक्सपेक्टेड है, ये चीज इंक्रीज होगी। हाँ, वो वाला डेटा सारा 21-22 का है। यहाँ पे तो अपना मैंने 2 साल का इसलिए लिया कि हम पिछले साल से कंपेयर तो करें इस साल में क्या परफॉर्मेंस है हमारी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। और सवाल आता है एनालिटिकल, कहां पे? यूपीएससी। इसलिए एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बेसिक्स हर सब्जेक्ट का तैयार कर लो, बेसिक्स हर सब्जेक्ट का तैयार कर लो। करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट का मैं एनालाइज कराऊं, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस में आई नो हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ो मैडम से, करंट अफेयर ज्योग्राफी का मैं एनालाइज कराऊंगा। मैडम तो वैसे करंट अफेयर्स भी करा देती है ज्योग्राफी में, जो भी रिसेंट इश्यूज चल रहे थे वो करा देती है, ठीक है। लेकिन मान लो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, वो तो चलो ठीक, वो भी डॉक्टर नहीं करा देती, ठीक है। लेकिन जिन एरियाज में आपको लगता है पॉलिटी में करंट अफेयर्स एनालिसिस करना है, मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे करंट एनालिसिस करना है उन चीजों का, ठीक है। हाँ, तो अब इस सब चीज से आपको क्या पता चलता है इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में? इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट कोविड से इंपैक्ट तो हुआ है, कोविड से, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं, पूरे वर्ल्ड का हुआ। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? अब ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? मैं डेटा वहां से लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो उसी तरह से फिर हर एक आपको इंडेक्सेस में इंडाइसिस की कैलकुलेशन में नहीं जाना, इंटरनल में नहीं जाना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको ये नंबर्स याद नहीं रखने, सिर्फ याद रखना है ये चीज पिछले साल के मुकाबले में इस साल के मुकाबले बढ़ गई है। कितनी बड़ी आपका कंसर्न नहीं है, नंबर आपका कंसर्न नहीं है। नंबर सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि देख लो इंक्रीज है कि नहीं, आपको दिखाने के लिए, जस्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी मैंने दिखाया आपको सिर्फ, ठीक है। देख लो, बस देख लो, बड़ा है या मैंने एरो, एरो रादर देन नंबर, आप एरो याद रखो, इतना काफी है, ठीक है। हाँ, वो तो मेंस में अगर एक आध नंबर कोट भी कर दोगे, लेकिन कोट करने के लिए ना एचडीआई स्कोर कोट करना कि हमारा एचडीआई स्कोर इतना हुआ। एक ही नंबर याद रखना, वो एवरेज दिखाएगा तीनों की, एचडीआई स्कोर। अभी मैं एचडीआई स्कोर पे भी आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एलईआई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें क्या करोगे आप, उसका ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एनी इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां से इधर को आते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? इट इज 67.2 ईयर्स, यही है। माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है बताया तो 20 ईयर्स, 85 ईयर्स। 20 ईयर्स इज द मिनिमम वैल्यू, 20 ईयर्स। ओके, डिवाइडेड बाय 85 ईयर्स minus 20 years. Okay, so it will be is equal to 47.2 divided by 47.2 divided by how much? Divided by 65. Divided by 65. What will be the score? 47.2 divided by 65. It will be more than 1, less than 1, or equal to 1. It will be definitely less than 1 because the numerator is greater than the denominator. ऊपर का वैल्यू जब छोटा हो डिवीजन में और नीचे का वैल्यू बड़ा हो, आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। ये तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। तो लेस देन 1 ही इंडाइसिस का हमेशा वैल्यू लेस देन 1 ही आता है। इसका आएगा अराउंड आपके पास 0.62 के अराउंड। ठीक है, अब मान लो ये 0.62 आ गया, दूसरा भी कुछ आएगा, दूसरा भी कुछ आएगा, इसका भी आएगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड इट्स वैल्यू इज 0.62 और समथिंग। इसका मान लीजिए 0.5 आ रहा है, इसका मान लीजिए 0.4 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप ये करोगे, इसका जब आप निकालोगे जियोमेट्रिक मीन, you will get to the idea of life expectancy, you will get the idea of human development index. So now what is the formula of human development index for that matter? ये समझ में आ गया आपको इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडाइसिस कैसे करते हैं? अब इन तीनों को ऐड करेंगे या क्या करेंगे? नहीं, मैंने बताया आपको, इनका जियोमेट्रिक मीन लेंगे, मीन नहीं लेंगे, जियोमेट्रिक मीन लेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। मीन क्यों नहीं लेंगे ये भी बताता हूं। 2010 तक हम लेते भी थे मीन, लेकिन 2010 में हमें रिपोर्ट हुआ, नोटिस हुआ, मीन की वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस क्लास में आप एक काम करना, आप जा रहे हो घर जा रहे हो, आपने स्कोर किया है 100 में से 90 एक सब्जेक्ट में, 90 दूसरे सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, 90 तीसरे सब्जेक्ट में, 90 चौथे सब्जेक्ट में और 10 नंबर 5वें सब्जेक्ट। ठीक है, उस दिन आपने कुछ पंगा किया था, आप जो है लिख नहीं पाए और आपका फेल हो गया पेपर ये। ठीक है, और आपके पापा आपके नीट के एंट्रेंस के एग्जाम का एडमिट कार्ड लेने गए हैं। ठीक है, और आप बायोलॉजी में फेल होकर आ रहे हो। ठीक है, अब पापा पूछेंगे मार्क्स कितने आए बेटा, आप बोलोगे पापा 370 मार्क्स आए। कितने आए? 370 मार्क्स आए। कितने? 370 मार्क्स आए। ठीक है, इतना ही बन रहा है ना, 370 मार्क्स आए। ठीक है, पापा क्या सोच रहे हैं, मेरा बेटा तो कमाल ही कर गया इस बार, 370 मार्क्स, बच्चे के 75% मार्क्स से प्लस ही आ गए। ठीक है, डिस्टिंक्शन आ गई, सेलिब्रेशन हो गया। ठीक है, बच्चा शाम को घर आ रहा है, बड़ा भाई घर आ रहा है, वो इंजीनियर है, वो पूछता है भाई जरा एवरेज तो नहीं बता, तो तू ये बता, इंडिविजुअल स्कोर बता। तब समझ में आ रहा, अच्छा वो नीट भी नहीं दे सकता, वो एक सब्जेक्ट में फेल भी हुआ। अब पापा को समझ में नहीं आ रहा, सेलिब्रेशन के खर्चे का दुख मनाओ या इसके फेल होने का दुख मनाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जब आप मीन लेते हो ना, मीन किसी चीज का, वो बड़ा मिसलीडिंग होता है। मीन मिसलीडिंग होता है क्योंकि वो आपको इनइक्वालिटीज नहीं बताता। क्या नहीं बताता? इनइक्वालिटीज नहीं बनाता। ये अर्थमेटिक मीन से मैंने बताया ना, 370 मार्क्स, इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए। ठीक है, मीन नहीं लेना। क्या? मीन नहीं लेना। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना किससे? 5 से, 370 डिवाइडेड बाय 570, तो कितना आ जाता है? 74। ऑन एन एवरेज इसके हर सब्जेक्ट में 74 मार्क्स हैं, लेकिन मीन तो क्या बोल रहा है, ऑन एन एवरेज इसके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है? जियोमेट्रिक मीन बताया वो इस सब्जेक्ट में फेल हुआ। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए जियोमेट्रिक मीन लिया जाता है कि वो इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटीज को क्या करता है? हाईलाइट करता है। अर्थमेटिक मीन उनको हाईलाइट नहीं करता। अब जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? HDI इज इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू Human Development Index is equal to geometric mean of life expectancy index, LEI,
मल्टीप्लाई बाय एजुकेशन इंडेक्स EI मल्टीप्लाई बाय GNI इंडेक्स, GNI इंडेक्स, तीनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और वैल्यूज जितनी हो, अगर 3 वैल्यूज हो तो क्यूब रूट लेंगे, 2 वैल्यूज हो तो स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, और 4 वैल्यूज होंगे तो यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का यही तो फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे, मुझे पता है, मैं प्योर आर्ट्स वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज HDI, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब LEI की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी, उस हिसाब से बाकियों की वैल्यू भी निकालेंगे, पर वो UNDP निकालेगा, तुम्हें क्यों निकालना है? तुम्हें रिसर्च तो करनी नहीं है ना, तुम्हें आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑल यू नीड टू नो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन इसमें ना कुछ चेंजेस लाए गए, कब? 2010 के अंदर। कब? 2010 के अंदर, ठीक है। वो चेंजेस क्या है, और उसके बाद 2021-22 जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके बारे में कुछ फाइंडिंग्स है उसकी, वो आपके मेंस का आंसर होता है, वो आपके मेंस के आंसर का कंटेंट होता है। वो फाइंडिंग्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कल की क्लास में, सेम जगह सेम टाइम, ठीक है।